Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके जितने भी exercise part थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new unit, that is unit 6, water. The chapter is chapter 10, sources of water. Let's start the chapter. Water is one of the most important requirement for all living things. A man can live without food for a short period of time but cannot live without water for too long. All our daily activities like bathing, drinking and cooking need water. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, हम लिविंग थिंग्स के लिए. एंड मैन कैन लिव, मतलब मैन जो है वो बिना फूड के तो रह सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट पानी के बिना नहीं रह सकता है. एंड हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज होती है वो पानी से रिलेटेड ही होती है, जैसे कि नहाना, पीना एंड खाना बनाना. More than 70% of our earth is covered with water, but only a small part of that water can be used for drinking. This is because over 97% of the water found on the earth is saline, that means salty, and considered unfit for drinking. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि more than 70% से भी ज्यादा हमारा जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, पर उसमें से भी बहुत ही कम पार्ट है जो हमारे पीने लायक है. ये क्यों होता है? क्योंकि 97% ऑफ द वाटर जो है वो उसमें क्या पाया गया है, उसमें सलाइन पाया गया है, यानी कि वो सॉल्टी है बहुत ज्यादा, एंड वो कंसिडर्ड है अनफिट, हमारे पीने के लिए वो लायक नहीं है. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो आर प्लैनेट अर्थ एंड वाटर 70.8% over there. Now the next point is natural sources of water. Let us learn about some natural sources of water. First one is rainwater. The main source of water on the earth is rain. Rainwater is termed as the purest source of water on the earth. It becomes polluted because of the gases and the dust particles present in air. जो रेन वाटर है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है हमारे अर्थ का, एंड रेन वाटर जो है उसे बोला गया है एज अ प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. ओके, एंड ये पोल्यूट कब होता है, जब इसमें एंड ये पोल्यूट किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द गैसेस, जो गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से पोल्यूट होता है. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो frozen water is 9% lighter than water, which explains why ice floats. जो फ्रोजन वाटर होता है वो 9% लाइटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर, जिससे हमें पता चलता है कि जो आइस है, जो बर्फ है, वो कैसे फ्लोट करती है. ओके, नाउ next source of water is underground water. Some of the rainwater that falls on the surface of the earth seeps into the soil till it reaches a layer of solid rocks. This water gathers here as underground water. This water passes through the different layers of the soil and gets naturally filtered. Villagers draw out the underground water through wells, hand pumps and tube wells. This water is used mainly for household and irrigation purposes. अब यहाँ पर क्या बोले कि कुछ जो रेन वाटर होता है वो सरफेस ऑफ द ग्राउंड में पहुंच जाता है, वो सीप डाउन हो जाता है सॉइल के अंदर, नीचे वो चले जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. एंड ये जो वाटर है लेयर्स ऑफ सॉइल को कवर अप करता है पूरा, मतलब पास ऑन होता है वहां से, यानी कि एक तरीके से फिल्टर हो रहा है वो पानी, और वो पानी फिर विलेजर्स निकालते हैं एज लाइक थ्रू वेल्स के जरिए निकालते हैं, कुएं के जरिए, हैंड पंप्स के जरिए और ट्यूबवेल्स के जरिए. एंड ये जो पानी है ये मेनली हम यूज करते हैं फॉर हाउस होल्ड एंड इरिगेशन पर्पसेस के लिए. Now before going further, there is an activity. What can be one of the methods to collect rainwater and make it suitable for domestic use? कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे सुटेबल बना सकते हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए? आपको ये फाइंड आउट करना है. Now next one is surface water. Surface water is the water on the surface of the planet above the ground. It is different from groundwater, which is in the soil, and atmospheric water, which is in the sky. Rainwater that runs off the ground is called the surface water. This water gets collected into ponds, lakes, streams and seas. अब यहाँ पर क्या बोला है? सरफेस वाटर वो वाटर है जो कि सरफेस ऑफ द प्लैनेट में ही होता है,
वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाता है। एंड यहाँ पर ग्राउंड वाटर तो है ही है, बट एटमॉस्फेरिक वाटर भी है, वहां पर भी नहीं जाता है ये वाटर, ये सरफेस में ही रहता है। ओके, रेन वाटर जो कि रन ऑफ करता है ग्राउंड को, उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। एंड ये वाटर कलेक्ट होता है कहाँ पर? पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड सीज में। नाउ नेक्स्ट वन इज सी वाटर। A sea contains water in huge quantities. Many seas join to make an ocean. There are 5 oceans in the world, namely Pacific, Atlantic, Arctic, Indian, and Southern Ocean. Most of the water on the earth is found in these oceans, but this water is of no use to humans because it is salty. Many aquatic plants and animals live in the water of these oceans. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक सी, समुद्र जो कंटेन करता है पानी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, एंड बहुत सारे जो समुद्र है वो ज्वाइन एक साथ मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? ओशन बनाते हैं। और देयर आर 5 मेन ओशंस है, जैसे कि फर्स्ट वन है पैसिफिक, देन अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड सदर्न ओशन, जिसे हम एंटार्क्टिक भी बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है अर्थ का वो इस ओशन में ही पाया जाता है, इन्हीं ओशन में पाया जाता है। पर ये जो वाटर है किसी यूज के नहीं है, हम इन्हें पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी होते हैं। एंड बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स है वो इन्हीं ओशंस में रहते हैं। Now next one is fresh water. The water available in natural water bodies like lakes, ponds, streams and river is known as fresh water. The water can be used in these water bodies after being purified. जो फ्रेश वाटर है वो पानी जो कि अवेलेबल है हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हो गया, हम फ्रेश बॉडीज बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। एंड जो वाटर, इस वाटर को हम यूज करते हैं लाइक फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज एंड आफ्टर बीइंग प्यूरिफाइड, उन्हें अच्छे से फिल्टर करके। Now, before going further, there is the point. Do you know there are more than estimated 84,000 dams in the United States alone? United States में more than 84,000 dams हैं. Okay. Now let's talk about rivers. First one, rain-fed rivers. Most of the major rivers in India receive their water from rainwater. These rivers are called rain-fed rivers. Godavari, Krishna, Narmada and Mahanadi are certain examples of rain-fed rivers. These rivers are full of water during the rainy season. However, during summers they dry up or have very little water. अब यहाँ पर क्या बोला है कि बहुत सारे जो मेजर रिवर है इंडिया में, उनको पानी कहाँ से मिलता है? रेन वाटर के जरिए मिलता है। इसी वजह से इनको हम रेन फेड रिवर्स भी बोलते हैं। जैसे ये गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी, ये सर्टेन एग्जाम्पल है रेन फेड रिवर्स के। एंड ये जो रिवर्स है ये पूरा पानी से भरे हुए होते हैं, कब? रेनी सीजन में। एंड समर सीजन में थोड़ा ड्राई अप हो जाते हैं और इनमें बहुत ही कम पानी होता है अवेलेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ नेक्स्ट वन इज स्नो फेड रिवर्स. The melting ice and the snow of the mountains is also one of the main source of water in the rivers. The rivers that have water from melting ice as their source are called snow-fed rivers. In India, the Himalayas are considered as the origin of some of the main rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and the Indus. These rivers are also called perennial rivers because they are full of water across the whole year. अब यहाँ पर क्या बोला है? जो मेल्टिंग ऑफ आइस है और जो स्नो है ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन में जो स्नो मेल्ट हो जाती है, आइस मेल्ट हो जाती है, वो भी एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, तो वो जो है वो रिवर के पानी में मिल जाता है। फिर द रिवर्स दैट हैव द वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस, मतलब कि उन्हें पानी कहाँ से आता है? मेल्टिंग आइस से आ जाता है। ओके, तो इंडिया में जैसे आपने देखा होगा कि हिमालयाज हो गए, तो उसमें ओरिजिन ऑफ सम ऑफ द मेन रिवर जो है वो यहीं से आता है, यानी कि वो जो आइस है वो पिघलती है, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंदस हो गए। तो ये जो रिवर्स है इनको हम पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं, यानी कि लंबे समय तक जिंदा ही रहते हैं, लंबे समय तक चलती रहती है, कभी सूखती नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स. The water flowing in the river can be of great use other than that of the daily uses, because this abundant water has to be stored for future use. This is done by constructing dams. Dams have huge reservoirs that gather water of that rivers. Dams generate 16% of the world's electricity and irrigate food crops for 12 to 25% of the world's population.
Most of the dams have been constructed for irrigation, but 80% of the water they store is used for hydropower. Dams and reservoirs help us to save water for future use. The water from reservoir can be released and fed into the canals. These canals are dug in such a manner so that they send the water from the rivers to the irrigation area. अब यहाँ पर क्या बोला है, जो पानी जो फ्लो होता है हमारे रिवर में वो बहुत सारे मतलब ग्रेट यूज के लिए काम आता है, जैसे कि बिकॉज ये जो अबेंडेंट वाटर है इसको स्टोर करते हैं हम फ्यूचर यूज के लिए, और कहाँ पर स्टोर करते हैं, बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स. डैम्स जो है एक ह्यूज रिजर्वॉयर जैसा है जो पानी इकट्ठा करता है रिवर का. डैम्स कम से कम 16% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इरीगेट भी करता है फूड क्रॉप्स को फॉर 12 to 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. एंड मोस्ट ऑफ द जो डैम्स है वो कंस्ट्रक्ट हम करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर इरिगेशन के लिए. बट 80% ऑफ द जो पानी है वो हम स्टोर करते हैं फॉर हाइड्रो पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए. डैम्स और रिजर्वॉयर्स जो है वो मदद करते हैं हमें पानी को सेव करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज. एंड ये जो वाटर है जो रिजर्वॉयर से रिलीज होता है इसको हम कहाँ पर ये जाता है, फेड इनटू द कैनल्स. ओके, सो फॉर फिर उसके बाद क्या होता है, जो कैनल्स हैं ये इन्हें डक किया जाता है इन सच अ मैनर ताकि जो पानी है दे कैन सेंड द वाटर, ताकि वो पानी को सेंड कर सके फ्रॉम द रिवर्स टू द इरिगेटेड एरियाज. ओके, जो जिस एरिया में इरिगेशन होना है वहां पर वो पानी को भेजते हैं. Now the next point is water in different forms. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. The liquid form is known as water. The solid form is called ice and the gaseous form is called as water vapor. अब यहाँ पर बोला है कि जो पानी है वो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो लिक्विड फॉर्म है वो वाटर होता है, जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस होता है और जो गैसियस फॉर्म है वो वाटर वेपर होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर साइकिल. Water does not remain stable in nature. Water keeps on moving constantly from the earth to the atmosphere and then back to the earth. This continuous movement of water between air and land is called water cycle. ये जो पानी है ये एक जगह नहीं रहता है, ये हमेशा चलता रहता है, मूव होता रहता है. तो ये जो मूवमेंट है, जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है पानी का बिटवीन एयर एंड लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. The water in the ponds, lakes, rivers and seas become heated because of the heat of the sun. Some of the water found in these water bodies evaporates and goes high into the air in the form of water vapor. This process of conversion of water from its liquid form, gas, or to water vapor is called evaporation. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो वाटर बॉडीज हो गए, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, तो इनको ये जब हीट अप हो जाते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जो पानी है ये हवा में उड़ते हैं एज अ वेपर. ओके, इट इवेपोरेट, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वो हवा में जाते हैं ऊपर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो पानी है कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि कैसे पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है. Next, plants also give out water vapor through opening in their leaves. This process is called transpiration. प्लांट्स जो है वो भी पानी लीव करते हैं अपने बॉडी से. जब उनके बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो उनकी लीव्स में वो वाटर ड्रॉप आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो पानी है वो भी वेपराइज फॉर्म में ऊपर चले जाता है हवा की तरफ, मतलब कि वो आसमान में चले जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. Now next point is, since water vapor is a gas and lighter than air, hence it goes up in the air. As it rises up, it cools and changes into droplets of water. This process of changing of the water vapor into the water is called condensation. This process of changing of the water vapor into water is called condensation. These water droplets settle into the dust particles present in the air and join to make clouds. अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो पानी है, जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ गया क्योंकि वो एकदम लाइटर भी है, ओके, एज कम्पेयर टू एयर, एंड वो ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड जैसे जैसे वो राइज करता है वैसे वैसे कूल डाउन भी हो रहा है. ठीक है, फिर वो चेंज हो रहा है किसमें, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर चेंज हो रहा है वापस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, जहां से क्या होता है, हमारा क्लाउड फॉर्म होता है. ओके,
नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी. यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 1 जिप लॉग बैग पर चाइल्ड, परमानेंट मार्कर्स, कलर्स आर फन फॉर पॉसिबल, वाटर, ब्लू फूड कलर्स एंड क्लियर टेप. फिर कुछ मेथड आपको दे रखी है, तो आपको ये एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करनी है. ओके. Now next point is slowly the water droplets start becoming cooler and clouds become heavy. They begin to precipitate and fall on the ground in the form of rain, sleet, hail or snow. This process of returning of the water in the form of rain, freezing rain, sleet, snow or hail to the land and water bodies is called precipitation. तो उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन के बाद स्लोली जो है वाटर ड्रॉपलेट्स है ये एकदम कूलर होने लग जाते हैं, क्लाउड्स जो है वो हैवी होने लग जाते हैं एंड वो शुरू कर देते हैं अपना प्रेसिपिटेशन मेथड, यानी कि वो फॉल कहाँ पर होते हैं, ग्राउंड में ही होते हैं वापस, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, हेल और स्नो के फॉर्म में. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो रिटर्न हो रहे हैं पानी के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रेन, फ्रीजिंग रेन, स्लीट, स्नो और हेल टू द लैंड और वाटर बॉडीज में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. Now next one, some of this rainwater falls into the lake, river and ponds, while a part of it seeps into the ground making underground water. The sleets or snow that fall on the mountain melts due to the heat of the sun and flow back to the water bodies. Hence the water cycle goes on in its nature. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो रेन वाटर है जब वो फॉल करता है कहाँ पर, लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स में, तो एक तो सरफेस उनका बढ़ा रहा है, यानी कि सरफेस वाटर भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से ग्राउंड में भी वो सीप करता है, यानी कि ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होता है जब बारिश होती है. एंड अब जब बारिश होती है तो उसके साथ मतलब कहीं कहीं एरिया में तो स्लीट या फिर स्नो भी हो रहा होगा, स्नोफॉल. ओके, तो उधर क्या होता है, जो माउंटेन का जो स्नोई पार्ट है मेल्ट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ओके, जिससे कि वो वापस पानी में आ रहा है, वाटर बॉडीज में ही आ रहा है. ओके, तो ये जो साइकिल है, वाटर साइकिल, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. Now let's move into the point vocabulary. First one is surface water, water present on earth's surface. Next one is underground water, rainwater that seeps into the ground through the soil and collect over the hard rock. Next one is rain-fed rivers, rivers having rainwater in them. Next one is snow-fed rivers, rivers having water due to melting of ice and snow. Next one is water cycle, the continuous movement of water from the earth's surface of the atmosphere and back to the surface of the earth. Next one is evaporation, the process of conversion of water from its liquid form to the water vapor on heating. Next one is condensation, the process of changing of water vapor into water on cooling. Next one is precipitation, the process of turning of the water to the earth in the form of rain or snow, etc. Now, as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember. First one, water is one of the basic need for the existence of life of living things on the earth. Next one, rainwater, underground water, surface water, sea water, fresh water, rain-fed rivers, snow-fed rivers are considered as a natural source of water. Next one, dam, reservoir and canals are termed as artificial sources of water because they are constructed by humans. Next one, water, ice and water vapor are the three different forms of water on the earth. Next one, the continuous movement of water from the surface of the earth to the atmosphere and then back to the earth's surface is called water cycle. Then next one, water cycle includes evaporation, condensation and precipitation. I hope student that you understood this chapter and your homework is आपको chapter अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो आपको practice zone की exercises दे रखी है उसे complete करना है. Till then students, take care. Bye bye.